So welcome back once again, myself Pransu Kumar Pathak, and dear friend, I hope you are doing well and DBT का एग्ज़ाम हो गया है, so relax yourself and I think कई लोगों ने बताया क्वेश्चन पेपर बहुत इजी था, so होप सो आपने बहुत अच्छा किया होगा और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं है ना, अपने आप को निराश नहीं करना है और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है जो कि आपके लिए क्या है, CHIR है। सो चलिए, एक एग्ज़ाम अगर ख़राब भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट एग्ज़ाम पे हम लोग फोकस करेंगे जो कि CHIR है। तो डियर फ्रेंड, आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग होप सो अच्छा ही करके आए होंगे सारे लोग, लेकिन जो भी हो इसमें हमें नए एनर्जी के साथ और नए रूप से फिर से लगना है, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, व्हाट वाई आई वांट टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, वी विल टॉक अबाउट MBA एंड MEP pathway in very details. So why we are talking about MBA and MEP pathway? So dear friend, this two pathway is basically responsible for isoprenoid biosynthesis, and in general we can say isoprenoid is very important for all living creature. How? I will prove in subsequent lecture. Cholesterol biosynthesis problem, isoprene. So everything in this universe somehow is controlled by terpenes and IPP. IPP is a universal molecule which connecting so many things. So चलिए, तो हम इसका मजा लेते हैं और कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज ए सेकेंडरी मेटाबॉलिक पाथवे। तो सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि व्हाट इज प्राइमरी मेटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म वो मेटाबॉलिज्म है जो कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के बेसिक थिंग को पूरा करे, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन। सो ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के अलावा भी कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो जनरेट होते हैं, क्रूशियल होते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व but to sustain your life. But of course these molecules play very vital role in various other circumstances. When plant combat so many stresses like biotic and abiotic, these secondary metabolites help plant. Basically terpenoid and large group of terpenoid help so much. So why we are talking about MBA and MEP? Because these two pathways basically involved for production of terpenoids and isoprenoids. Okay, so before going into the details, I just want to tell you very important thing, dear friend. So plants are self-sufficient organism. Why? Because they are autotrophic in nature, and that only use water, mineral, and atmospheric carbon dioxide as a raw material for production of their energy. Of course, sunlight is very important for all creatures, living creatures, from prokaryotes to the higher mammals or whatever. So photosynthesis is one of the basic need for plants by which they can synthesize their food. So friends, production of I want to take a pen, so sorry for inconvenience. So production of organic matter like oxygen, and that is a pillar for currently for sustaining life on this earth. सो अगर प्लांट नहीं होते तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है वी डोंट नो। बिसाइड बीइंग द प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी फॉर द फूड चेन। सो ये जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है, जो कार्बन के सोर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म की। तो फोटोसिंथेसिस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हम ग्लाइकोलिसिस की बात करेंगे, क्यों हम क्रेब साइकिल की बात करेंगे, दिस ऑल थिंग्स आर प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। सो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वही सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में जाकर के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाती हैं। तो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म हैज़ देयर ओन इंपॉर्टेंस, फ्रॉम देयर वी कैन कट टू मेक अ जेन्युइन इशू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, सो this is the result of an evolutionary path to overcome their sessile life cycle and survive in almost all kind of environment. Development of humankind has always been linked to the use of many these plants and food stuff, but also manufacture some useful medicine from that. So production of that material, that useful medicine, is a really very challenging task, but the development of these secondary metabolites comes into the picture, and this change this whole universe. And from secondary metabolite, I am damn sure about 60 to 70% of secondary metabolite is used as a medicine, whether it is in allopath or homeopath or any other medical preliminary trial systems. किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, आयुर्वेदा में जाओ, चाहे किसी में भी जाओ, आयुर्वेदा तो टोटल प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं,
So dear friend, these secondary metabolites is really very important, but to produce these all important metabolite, it's very challenging task nowadays due to the we are challenges with the climate change and overpopulation. Population is growing exponentially, and the production limited land is limited and everything is limited, and we are growing exponentially. So लैंड हो गया, वाटर शॉर्टेज आप देख सकते हो, थ्रेटेंड आज यहाँ तक कि चेन्नई में पानी नहीं है. So in India there are a lot of problem is emerging due to this climate change. So climate change इंडिया में बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है nowadays. हमारे पीएम मोदी जी भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, I don't know, but of course climate change is a big issue for all of us, so we have to understand this. So with that note, I want to start about isopronate biosynthesis in plant. So carbon partitioning, it's very important for the plant, that I will discuss in subsequent lecture, that how you will come to know. So dear friend, before going to the details, I want to give you some basic introduction about the plant. Plant produces a great array of structural drivers isopronate than other organisms, and these are conveniently divided into the class of primary and secondary metabolism. I have already told that two type of metabolism are already available in any type of living organism, that is the primary metabolism and secondary metabolism. Primary metabolism is responsible for particular growth and development, but secondary metabolism is not directly involved, but of course these are very important. So let's try to understand. Isopronate is also covered into the both category. So I want to talk from isopronate biosynthesis in plants, because isopronate works both in primary metabolism as well as secondary metabolism. How we will try to know in subsequent slides. Okay, so primary metabolism includes, so I want to change pen because I am using red pen, so I will take black. No, chalo rang change kar lete, theek hai. So we will understand. Primary metabolite includes sterols. Sterols is very important for plants. Carotenoid production and growth regulator like various hormone like brassinosteroids. So brassinosteroid is produced from this particular isopronate. So cytokinin is another hormones that is also somehow related with this. So hormone is basically involved with isopronate. So these are primary regulators. पॉलीफिनॉलिक्स बहुत सारे हो गए, है ना, पॉलीपेरेनॉल्स हो गए, जैसे लाइक डॉलिकॉल हो गया. डॉलिकॉल फॉस्फेट कहाँ मिलता है? जब आप पढ़ोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब ग्लाइकोसाइलेशन होता है, तो ग्लाइकोसाइलेशन में डॉलिकॉल का यूज होता है. आप अगर फिर से जाएं तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे यूबिक्विनोन, क्विनॉन्स, very important for the electron transport chain in plants, and basically so and so for various protein that are formed from isopronate that are involved in primary metabolism of plant. This compound function as well as this very important, this compound function in plant much as they do into the other organism, and also essential for membrane integrity, photoprotection, photoprotection, and orchestration and development of program of anchoring and essential biochemical function to specific membrane system respectively. So these are the isopronate basically responsible for primary metabolic pathway. So now we can try to know how this isopronate is involved in secondary metabolism. So secondary metabolism includes development of monoterpenes, sesquiterpenes, diaterpenes, and it is classified and it is this class of isopronate that are more unique in plant. Isopronate का जो uniqueness है, monoterpene biosynthesis, sesquiterpene and diaterpenes and polyterpene, these are more specific to plants. So although compounds within this latter categorized into consideration as secondary because they're not essential for viability. I have already told that this is not responsible for growth and development and reproduction. So these but of course they are very important mediators, as for they can help to plant interaction, insect interaction, plant pathogen interaction. So these all interaction can be influenced by the isopronate biosynthesis. So this note I want to go inside that topic. So dear friend, I think you have understand a lot about that. So I have taken something important from that paper. So that paper came into plant cell report. Okay, so in engineering of terpenoid production through transient expression of Nicotiana
benthamiana. That is really very important. Why I have given that and I have taken this, terpenoid biosynthesis, because engineering terpenoid biosynthesis in heterologous host production platform provides a means to overcome the obstacle. These metabolites are produced into a system that whatever produce into the plant, that is very limited and very less. So what we are doing, we are trying to improve that amount of these secondary metabolites, because these are very medicinally very important. So if it is very important medicinally, so what you can do, you can express these genes into the heterologous system to make more amount of this secondary metabolite. So for that, what they are doing, they are taking these all things from particular system, and they want to heterologously expressing these genes into the Nicotiana benthamiana. So what they want to do, they want to increase the production. So for transient, why they are expressing transient gene there in Nicotiana benthamiana, because the life cycle of Nicotiana benthamiana is 3 to 4 months, as well as plant have a higher biomass yield, so you can produce large amount of metabolites. I think you understand what is my focus, what I want to tell you. So in this paper, basically they examine and they check that the natural products potential to increase into the heterologous system is very prominent. So they come up with the idea how to increase, how overproduce some product, terpenoid production through transient gene expression. So I have already expressed what is the meaning of transient gene expression and how can you expression is in transiently. Okay, so with that note, I want to tell you, as our understanding, plant natural product biosynthesis increases expression of this pathway into heterologous host, provide an opportunity to address that problem, to meet continuously. That is very important, because in that particular the same plant, this is producing this particular commercial product is very less in amount, and if you will express into the heterologous system, it will drastically increase. So this is very important technique to understand. So dear friend, before going into in the whole idea how this acetyl coenzyme A, everybody know acetyl coenzyme A, how acetyl coenzyme A is formed, because this is a product of primary metabolism. कैसे बनता है भैया? तो जैसे ही ग्लाइकोलिसिस हो जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड से सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है. दैट एसिटाइल कोएंजाइम is really very important, very important for you guys. Okay, so you have to fix that point. So this acetyl coenzyme A, this acetyl coenzyme A is very important for all of us. So before going to that whole diagram, I want to tell you something. So depiction of isoprenoid biosynthesis pathway in plant with respect to the types of end product and this physiological significance, that is very important. The bottleneck indicate the rate limiting steps of a sterol metabolism is HMGR. HMGR is a 3-hydroxy 3-methyl guttyryl coenzyme A reductase, that is called HMGR. और अरेबिडोप्सिस में इसके दो फॉर्म होते हैं, HMGR1 and HMGR2. तो जो HMGR1 and 2, these are basically very important in plastidil pathway as well as साइटोसोलिक पाथवे. तो इस पे हम आगे बात करेंगे आपसे, ठीक है. लेकिन आपको ये याद रखना है, दिस इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप. और जब HMGR की बात करें तो HMG CoA इज ए एंजाइम दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इन हायर वर्टिब्रेट्स. सो वहाँ पे HMG CoA को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग से हम क्या करते हैं, रोकते हैं. उसको नाम है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्टैटिन. स्टैटिन बेसिकली क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का इनहिबिटर है. वो एनालॉग होता है HMG CoA का, रिजेम्बलेंस रखता है, वो कॉम्पिटिटिवली जाकर के उससे बाइंड कर जाता है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन सम जब हम DBT और JRF के किसी के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि HMGR क्या करता है कि HMGR CoA एक बेसिकली रिजेम्बल करता है, वहाँ पे जाकर फिट करता है, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है और जाकर के रेट लिमिटिंग स्टेप ये जाकर के ब्लॉक कर देता है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस की. तो जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनती है उसको हम स्टैटिन एज ए ड्रग हम देते हैं, ठीक है. इन प्लांट्स द कंट्रोल ऑफ आइसोप्रोनाइड मेटाबॉलिज्म रिमेन कंट्रोवर्शियल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी को नहीं पता कि आइसोप्रोनाइड बायोसिंथेसिस में जो
ये भी जो IPP है, DMAP है, दोनों जो प्रोडक्ट हैं, दोनों में पहले कौन आया, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं अभी तक, जिन्हें अभी तक डिसिफर नहीं किया गया है, that we will discuss in subsequent lecture. So dear friend, we have to understand these things in very important manner and very finely tuned manner. So dear friend, site of other HMGR that might regulate carbon flow include point enzymes such as sesquiterpene cyclase. So sesquiterpene cyclase यहाँ पे देखो B के पास, यहाँ पे है HMG CoA, इसको हम अगर ब्लॉक करें तो ब्लॉक करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टैटिन बिकॉज दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कुछ जो HMG CoA है इज बेसिकली ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया कि IPP बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, वहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। जब हम पूरा मेटाबॉलिज्म जब हम पर्टिकुलर सारा कवर अप कर देंगे तब आपको मजा आएगा, तब आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी भी। ओके, सो दैट्स अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन दैट आई विल डिस्कस। सो रेगुलेशन ऑफ दिस 3 enzymes as a means to controlling the isopronate biosynthesis is very important, that to A, B and C. So what they are, एक है यहाँ पे वो है HMGR, सॉरी ये दिस एंजाइम। सेकेंड B जो है, B पे कौन सा है enzyme, that is called sesquiterpene cyclase, because there is cyclization of sesquiterpene is going on, and then this is really very important. But the last but not the least जो आप समझो तो सिप्लिन यहाँ पे जो सिंथेज है that is also again very important enzyme, जिसे हम SQS शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। This is really very important for you guys. Okay, so for sterile biosynthesis these 3 genes are very crucial for production of isopronate. यहाँ पे आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि मैंने आपको बोला कि इसी IPP मॉलिक्यूल से साइटोकिनिन बन रहा है, इसी IPP मॉलिक्यूल्स के आगे जाने के बाद आपको ब्रेसिनोस्टेरॉइड बन रहा है और जिब्रेलिक एसिड बन रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकिनिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड, these things are basically what? These are the hormones. These are primary metabolic hormones for the plant, that is very important for growth and development. So जहाँ पे growth and development आ जाएगा वहाँ पे क्या आएगा, primary metabolism rather than secondary metabolism. फिर जब IPP से जब नीचे जाएगा GPP बनेगा तो वहाँ पे मोनोट्रपीन्स बनेंगे, मोनोट्रपीन से GPP से बनेगा APP, वहाँ पे बनेगा सेस्कीटरपीन्स, वहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, सेस्कीटरपीन साइक्लेज, जो साइक्लाइजेशन करेगा, फिर धीरे धीरे वो स्टेरॉल बायोसिंथेसिस में जाएगा, स्टिग्मास्टेरॉल बनेगा। प्लांट में स्टिग्मास्टेरॉल होता है और एर्गोस्टेरॉल होता है, बट नाउअडेज कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो फाउंड इन प्लांट्स, बट पहले ऐसे लोग मानते थे कि कोलेस्ट्रॉल प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें बहुत समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, दिस इज अ हाइपोथेटिकल मॉडल सजेस्टिंग हाउ isopronate biosynthesis might be regulated and by controlling a branch point enzyme and might be metabolite transports. Okay, so coordinated expression of entire metabolic pathway depict by biosynthesis of class of isopronates. So एक A में क्या कह रहा है, बता रहा है कि by control a branch point enzyme and a metabolite transporter, कैसे एक दूसरे को ट्रांसपोर्टर को के थ्रू कैसे एक दूसरे को मेडिएट करते हैं एक, और दूसरे में बता रहा है कोऑर्डिनेटेड एक्सप्रेशन ऑफ एंटायर मेटाबॉलिक चैनल डेडिकेटेड टू अ बायोसिंथेटिक स्पेसिफिक क्लास ऑफ आइसोप्रोनाइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, कभी किसी ने ये पढ़ा होगा कि एक एक, कभी कोई जीन के बारे में पढ़ता होगा कि ये मेटाबॉलिक पाथवे के अप स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। ये मैं आपको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर में लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा कि कैसे हम कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये इसके अपस्ट्रीम होगा और ये जो जीन है इसके डाउन स्ट्रीम होगा। ये हम कैसे डिपिक्ट करते हैं कि these all are a multi-step reaction. So these multi-step reaction we have to understand which gene is where. So location is really very important to the pathway कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले IPP बनेगा फिर FPP बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि FPP पहले बन जाए फिर IPP बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस ऑल पाथवे आर फाइनली ट्यून्ड। सो ट्यूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक टेक्निक है जिसमें हम रेडियो लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। रेडियो लेबलिंग कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, और उस टेक्निक का नाम क्या है, क्योंकि उस टेक्निक के थ्रू ही मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की डिस्कवरी हुई थी। उस पर हम अलग से जब क्लास लेंगे तब आपको हम बताएंगे, ठीक है। सो ब्रांच पॉइंट रेगुलेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, पाथवे का बाइफर्केशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट
which I have already told you in the previous slides की ये जो branch point regulation है, this is really very important in a control cell. What is happening? Stroll biosynthesis is going on और FPP नीचे जाकर के क्या बना रहा है, देखिए बेसिक थिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए से शुरू होगा और फिर धीरे धीरे HMGR आएगा, MBA मॉलिक्यूल बनेगी कहाँ, साइटोसॉल में। और साइटोसॉलिक, क्योंकि ये दोनों क्या है, MBA पाथवे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो MBA पाथवे में जब बनेगा तो FPP बनेगा, फिर GGP बनेगा, फिर इस तरीके से बन करके आपका प्रोडक्ट तैयार होगा, जैसे कैरोटीनॉइड है, जिब्रेलिक एसिड है, इबिक्विनोन है, डालिकॉल है, दिस ऑल मॉलिक्यूल विल सिंथेसाइज। बट स्टेरॉल बायोसिंथेसिस यहाँ से टूटता है जब FPP से जब आप जाएंगे तो सिक्लिन साइक्लेज एक आता है, वो क्या करता है कि पार्टिकुलरली स्टेरॉल बायोसिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेरॉल को बना रहा होता है। तो जैसे ही इसका आप बंद कर दिए, ठीक है, जैसे स्टेरॉल बायोसिंथेसिस आप बंद कर दिए तो सिस्किटर्पिन साइक्लेजेस एक्टिव हो जाएंगे और इनका पूल और ऊपर पाथवे के जीन का पूल बढ़ जाएगा, क्योंकि व्हाट यू हैव डिड, यू हैव ब्लॉक स्टेरॉल बायोसिंथेसिस जीन। तो सिक्लिन सिंथेज को आपने क्या किया, ब्लॉक किया। दिस जीन इज नॉट फंक्शनल, सो पूल इज गोइंग इनटू द अल्टरनेटिव डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इन दिस पूल इज इसमें क्या होगा, पहले तो पाथवे जा रहा था, SQS वहां पे है, सिक्लिन सिंथेज जो स्टेरॉल बना रहा था। नाउ दिस स्टेरॉल बायोसिंथेसिस इज इंटरप्टेड, सो बाय इंटरप्टिंग this SQS, so sterol is not able to produce. In this case, pathway is going to the alternative direction. So FPP is now activating another class of enzyme that is called siskiterpene cyclase. In this case, siskiterpene cyclase, what they are doing, they are transform this whole pathway from steroid to siskiterpene biosynthesis. अब देखो, एक जब FPP जब SQS के पास जाएगा, सिक्लिन सिंथेज के पास जाएगा, तो वो स्टेरॉल बायोसिंथेसिस कराएगा। जब यही पाथवे FPP से घूमते हुए सिस्किटर्पिन साइक्लेज के पास जाएगा तो वे सिस्किटर्पिन बनाएगा, जो 50 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे। आई विल डिस्कस इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स आल्सो। सो एक पाथवे समझ में आया, ब्रांच पॉइंट रेगुलेशन, कि कैसे एक पॉइंट से, जो कि मैंने इसमें दिखाया कि देखो एक IPP मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, जो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल बना रहा है, कैरोटीनॉइड बना रहा है, मोनोटर्पिन डाइटर्पिन बना रहा है, और वही IPP मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, यूबिक्विनोन यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चोन में चला जा रहा है। वही प्रोटीन जब ब्रांच पॉइंट फॉर्मेशन में देख रहे हो, एक स्टेरॉयल बायोसिंथेसिस में जा रहा है, एक सिस्किटर्पिन बायोसिंथेसिस में जा रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर व्हाट दे आर फाइनली ट्यून्ड, and this is very important to know how this pathway and how these flux are interchanging. So इसीलिए secondary metabolic pathway and pathway engineering is really very interesting topic for me, so I am working in this area. So dear friend, I don't know which area you want, but for a PhD scholar it is very important to know in which area you want to do and what you want to do from your life. So try to decide as soon as possible, because it will help you. So for this you can, I have given you the whole, because this isoproduct biosynthesis is governed into the two systems, one into the cytosolic system, one into the chloroplast. So chloroplast pathway is known as MEP pathway, and second pathway is called MBA pathway, that is control into the cytosol. So आप देख सकते हो MEP pathway में पायरुवेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आते हैं, वहाँ पे कैसे चलता है ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और IPP और DMAP, these two molecules is really very important for whether it is MBA pathway or what is MEP pathway. दोनों पाथवे में ये IPP और DMAP का पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इंजाइम होता है जिसे हम आइसोमरेज कहते हैं, IDI, ठीक है। IDI क्या करता है, IPP को DMAP में कन्वर्ट करता है और DMAP में को IPP में कन्वर्ट करता है। बेसिकली मतलब प्लांट के अंदर कौन पहले बनता है, इट इज रियली ए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट टिल डेट, कि which molecule is synthesized first, whether IPP or DMAP. So dear friend, it is nowadays it's a very difficult task to say whether IPP is formed or DMAP formed. So their conversion is really, these two molecules is very essential for development of various terpenoid. So ये कैसे बनते हैं अभी तक बहुत कंट्रोवर्शियल है, इस पर अभी तक कोई भी बढ़िया पेपर ऐसा नहीं अभी तक आया जो बता दे कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। यही है कि अंडा आया कि मुर्गी आया वाला हिसाब है, दोनों में से कौन पहले आया, वी डोंट नो। सो इस पर फोकस नहीं करना, बस ये जानना है कि हाँ दिस टू मॉलिक्यूल्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ओके, आप देख सकते हो कि जब एक
सारे बन जाएंगे IPP। सो ये फिर धीरे धीरे जाएंगे तो बनेंगे फर्नेशन बनाएंगे जो FPP के थ्रू बनाएंगे जो कि सेस्किटर्पिन्स कहलाएंगे। फिर यही मॉलिक्यूल स्टेरॉयड बायोसिंथेसिस स्टोरल बायोसिंथेसिस में चला जाएगा जो कि यहाँ पे सिक्लिन बनेगा, सिक्लिन बायोसिंथेसिस फिर जाएगा, फिर स्टेरॉयड बनेगा, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बनेंगे, कैरोटीनॉइड्स बनेंगे, है ना, क्लोरोफिल्स बनेंगे। तो these all things are very important to understand because this pathway is really regulating a lot of things into the plants. So dear friend, you have to notice this. So what is common? So common is both pathway producing 5 carbon building blocks, that is isoprenyl diphosphate, that is IPP, and isomer dimethyl allyl diphosphate, that is called DMAPP. Or the another pathway that is called MEP pathway is generally considered to responsible for production of monoterpene, that is the C10. क्योंकि मोनोटर्पीन उसे कहते हैं जब 2 आइसोप्रीन यूनिट, एक आइसोप्रीन यूनिट कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है, 5 कार्बन के होते हैं। जब 2 आइसोप्रीन यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो बनते हैं मोनोटर्पीन, जब 3 जुड़ के बनते हैं तो बनते हैं सिस्किटर्पीन, जब 4 आपस में जुड़ेंगे तो बनेंगे डाइटर्पीन्स, ओके, और 4 से अधिक जुड़ते हैं तो बनेंगे पॉलीटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन, जैसे कैरोटीनॉइड के हो गए पॉलीटर्पीन्स में आएंगे, है ना। ट्राइटर्पीन्स कितने होंगे? तो ट्राइटर्पीन्स कहने का मतलब 10 × 10 × 10। देखिए मोनोटर्पीन में 10 है यानी 2 आइसोप्रीन यूनिट, अब ट्राइटर्पीन में कितने आ जाएंगे? 6 आइसोप्रीन यूनिट्स आपस में जुड़ेंगे। तो my goal is to make you understand that MEP pathway is basically responsible for production of monoterpene, diterpene as well as C40 compounds, while sesquiterpene, that is called C15, and triterpene are synthesized via MEP pathway which is held into the cytosol. MEP pathway कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। MEP pathway कहाँ होता है? cytosol. So sesquiterpene and triterpene biosynthesis is where it is happening? into cytosol. और मोनोटर्पीन्स हो गए, डाइटर्पीन्स हो, ये कहाँ सिंथेसाइज होंगे? ये सिंथेसाइज होंगे आपके क्लोरोप्लास्ट में। सो यहाँ से क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है कि CSR में 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो डियर फ्रेंड, ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया. So dear friend, we want to go inside. So I want to tell you some drugs which is really very important. So terpene have historical perspective बहुत है इसका. आर्टिमिसिनिन जो है एंटी मलेरियल ड्रग है, जैसे आर्टिमिसिया अनवा से बहुत ज़्यादा निकाला जाता है. और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो अबूदीन हैं जो जामिया हमदर्द में, वो बहुत अच्छा काम करते हैं आर्टिमिसिनिन बायोसिंथेसिस पे. अब टैक्सोल प्रोडक्शन आप देख सकते हैं. टैक्सोल इज अ डाइटरपीन, इज अगेन प्रोड्यूस. डाइटरपीन कहाँ प्रोड्यूस होगा? क्लोरोप्लास्ट में. सो टैक्सोल प्रोडक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्यूमर एंड कैंसर. कैंसर के वैक्सीन में बहुत इंपॉर्टेंट है. जो वैक्सीन बनाते हैं उसमें QS11 एक ट्राइटरपीन मॉलिक्यूल है जो कि एडजुवेंट की तरह काम करता है. यू ऑल नो अबाउट एडजुवेंट्स. व्हाट इज एडजुवेंट्स? आई जस्ट वांट टू टेल यू व्हेन यू विल यानी हेप्टेंस क्या होते हैं? Heptens are the antigenic determinants which is not able to produce immune response. So to generate immune response, what we will do, we can add up something. So to make a proper antigenic response, we are adding some adjuvant to make it functional antigen. So functional antigen में हम जब heptens में adjuvant add करते हैं तो वो अपना immunogenicity काउज करता है. तो ये जो आपका ट्राइटरपीन है इस तरीके से भी यूज किया जाता है. सो डियर फ्रेंड, बाय दैट नोट आई वांट टू टेल दैट दिस 2 पाथवे इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइल CoA. हम इसको बार बार कहेंगे ताकि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है. MVA का प्रिकर्सर है एसिटाइल CoA और MEP पाथवे का प्रिकर्सर है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड पाइरुवेट. This is coming from glycolysis and this is also a product of glycolysis, and this acetyl coenzyme A is one step after glycolysis. Glycolysis के बाद क्या आता है कि acetyl coenzyme A बनता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. सो मुझे लगे कि हाँ आप रियली इस लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं. सो डियर फ्रेंड, इसको और भी अच्छे से हम आपको कवर करेंगे कि मेन रीजन क्या है कि चीज़ें सेम है
ऊपर से एसिटाइल CoA धीरे धीरे HMGR MBA मैवलोनिक एसिड बनेगा, फिर धीरे धीरे IPP में कन्वर्ट होगा, फिर FP बनेगा, FPS वहाँ पे आएगा, सेस्किटरपिन बायोसिंथेसिस करेगा, SQS आएगा, सिक्लिन बनाएगा, टाइट्रपिन्स बनेंगे, स्टेरोल्स बनेंगे, यू नो. तो these all things are very important. So that is going into the cytosolic phase. Now come into the MEP pathway. So MEP pathway is also called as, because this is plastidial, और plastidial में ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है हम जब क्लियर करेंगे, DXS से DXP से MEP बनता है. तो ये MEP जो है, MEP का फुल फॉर्म है 2C मिथाइल डी इराइथ्रेटोल 4 फॉस्फेट. सो दिस इज शॉर्ट में हम कहते हैं इसे MEP. So basically this is responsible for production of monoterpenes, diterpenes and C40 components in general. Okay, so MEP pathway is also referred as, you know, mevalonate independent, because यहाँ पे मैवलोनिक एसिड कहीं नहीं बनेगा. And or we can also say that deoxyxylose फॉस्फेट पाथवे. जाइलुलोज कहने का मतलब, एक होता है जाइलोज, एक होता है जाइलुलोज. जाइलुलोज कहने का मतलब यहाँ पे कीटोन है ना, ये अल्डोज है या कीटोज है, तो एक कीटोज है. जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, मे बी आपका एक यूट्यूब पे भी वीडियो पढ़ा हुआ होगा कार्बोहाइड्रेट का, बट आई डोंट नो वेदर इट इज सफिशिएंट और नॉट. आई विल प्रिपेयर अनदर वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो डिऑक्सीजाइलुलोज जो है एक तरह का कीटोज है फॉस्फेट पाथवे. तो डिऑक्सीजाइलुलोज फॉस्फेट पाथवे भी हम एक तरह से कह सकते हैं MEP पाथवे को, क्योंकि जो DOXP है वो कुछ नहीं, यही है डिऑक्सीजाइलुलोज फॉस्फेट. सो टर्मिनोलॉजी MEP pathway is preferred in that MEP is first terpenoid precursor, while listed deoxylose phosphate is also used for biosynthesis of pyridoxal phosphate, that is also called as vitamin B6, and thiamine, that is also called as vitamin B1. थाइमीन DNA में होता है, थियामीन विटामिन है, थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है. तो कंफ्यूज नहीं करने का, विटामिन सारे जो है आपको पता होना चाहिए. विटामिन B1 क्या होता है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, ऐसे आपको पता होना चाहिए. विटामिन B1 को कहते हैं थियामीन, विटामिन B2 को कहते हैं क्या, थियामीन. तो इस तरह से जितने भी विटामिन से आपको पता होना चाहिए, नियासिन, राइबोफ्लेविन, है ना, पेंटोथेनिक एसिड B6 को कहते हैं, विटामिन B7 को फॉलिक एसिड कहते हैं. ठीक है, तो विटामिन BH भी फॉलिक एसिड को बोलते हैं. तो जितने भी विटामिन हैं इन सभी का हम प्रॉपर जब वीडियो लेकर के आएंगे तब हम बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया विटामिन को पढ़े हुए भी और पढ़ाए हुए भी. तो विटामिन इज ऑल्सो प्रोडक्शन ऑफ पैराडॉक्सल फॉस्फेट B6 एंड विटामिन B1 is also responsible for somehow from deoxyxylulose phosphate, क्योंकि these all things are somehow linked with HMP shunt. So both pathway, mevalonate pathway and MEP pathway, supply isoprene unit for biosynthesis of particular terpenoids. So dear friend, before going into the details of MEP pathway, आपको दिमाग में मैंने बोला था दो चीज आपको बैठा के रखना है, एक तो पायरुविक एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट. ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आएंगे और यहाँ पे आएगा सबसे पहले विटामिन B1. B1 इज एक्ट एज ए कोफैक्टर. यहाँ पे को एंजाइम की तरह आएगा, को एंजाइम थियामिन पायरोफॉस्फेट इनको अटैच कराएगा और बनाएगा सबसे पहले जो बनाएगा डॉक्सपी, जो 1-deoxydialose 5-फॉस्फेट बनाएगा. तो यहाँ पे जो एंजाइम आएगा उसका भी नाम उसी से समहाउ सिमिलर होगा. जैसे मेरा नाम प्रांशु है तो मेरे लिए जो एंजाइम आएगा वो प्रांशुनेज आएगा. लास्ट में मेरे नाम के पीछे जोड़ लो AC, तो मेरे नाम का वो एंजाइम होगा. इसी तरह से जो प्रोडक्ट होगा उसी से रिलेटेड सिंथेज, सिंथेटेज, है ना, ऑक्सीडेज, उस तरह से जिस फैमिली में 6 कैटेगरी एंजाइम्स के होते हैं उसमें मैं जब एंजाइम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, उसी तरह से उसके नेम्स उसमें एडअप होते रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जब दोनों मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो थियामिन पायरोफॉस्फेट, तो 1-deoxydialose 5-फॉस्फेट सिंथेज, जिसे डैक्सपी बोलते हैं सिंथेज, है ना, DXP सिंथेज बोलते हैं, वो सबसे पहला मॉलिक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं 1-deoxydialose 5-फॉस्फेट, which is also called as a pathway, name as MEP pathway. ओके, अब यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल आता है रिडक्टेज, जिसे NADPH आता है, रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट तैयार करता है, रिड्यूस करता है इस चीज़ को, और सबसे पहले बनता है 2C मिथाइल डी इराइथ्रेटाइल 4-फॉस्फेट सिंथेज, जो कि बनाता है MEP मॉलिक्यूल. सो DXP
चेंज करता है MEP में। दिस इज कन्वर्जन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि इसको इनिबिट करता है, ठीक है। सो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर में देखेंगे कैसे डेक्सपी को MEP बनने में कन्वर्जन को रोका जाता है, और कौन पर्टिकुलर वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है, जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो कि एक्ट करके इसको करता है। यहाँ पे साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट आता है, और ये बेसिकली क्या करता है, जो M2C मिथाइल डी इथराइल 4-फॉस्फेट बना था, इसमें एक इथराइल सिंथेज एंजाइम आएगा, और इसको बस CTP से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर जा करके एक CDP कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ ये देख रहे हैं CDP कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है, तो दिस CDP कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज 4-CDP2C मिथाइल डी इथराइल। यहाँ पे अगेन एक ATP मॉलिक्यूल आएगा जो कि इसको साइक्लाइज करने की कोशिश करेगा और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेगा। इसका नाम है 4-डाइफॉस्फेट cytidine 2-dimethyl d-ethyl kinase, because there is ATP, so kinase reaction is going on, kinesis is going on, so it will give rise to 2-C-methyl d-ethyl 2,4-cyclophosphate, है ना। ये साइक्लाइजेशन हो रहा है, और ये वापस में जब ये ब्रांच पॉइंट जब टूटेगा, तो बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो बना है यहाँ इतना, ये टूटेगा और यहाँ पर आपको एड अप होगा, क्या, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ, यहाँ पे ये सारा चीज टूटेगा, ब्रांच पॉइंट टूट करके यहाँ पे बनेगा एक 4-हाइड्रोक्सी-3 मिथाइल इनाइल डाइफॉस्फेट, दैट इज दिस मॉलिक्यूल। सो एक कन्वर्जन, इतना आपको याद नहीं रखना, इतना दिमाग नहीं लगाना, बस चीज़ों को समझना है कि हो कैसे रहा। ट्राई टू जब भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो ना, चीज़ों को लिखने की कोशिश करो, एक स्टेप से दूसरा स्टेप कैसे जा रहा है, दूसरा स्टेप से तीसरा स्टेप कैसे जा रहा है, तीसरा स्टेप। No, when you will focus step by step, you will know each and everything, and I think you will the hero in that particular subject also. So dear friend, I have already discussed this slide, so I will not go into the details. And the distribution of aspironide in plant is really very somehow dependent on these two molecules, that is called IPP and DMAP. So this conversion is basically controlled by an enzyme known as isopentyl diphosphate isomerase, because this is also called a IDI. So this IDI molecule is basically responsible for conversion of IPP to DMAPP. So ये दोनों मॉलिक्यूल का कन्वर्जन बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, ये एंजाइम पे डिपेंडेंट है जिसका नाम है आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट आइसोमरेज। सो विद दैट नोट आई वांट टू give some difference between MEP pathway, that is called mevalonate pathway, and erythroid phosphate pathway. So MEP pathway जो डिस्कवर हुआ है बहुत लेट हुआ है, बहुत ही मैंने ये 1990s के आसपास हुआ है, और मेवोलेनेट पाथवे 1950s के आसपास हुआ है। तो विच पाथवे इज ओल्डेस्ट पाथवे, तो ऑब्वियसली MVA पाथवे इज ओल्डेस्ट पाथवे। MEP पाथवे इज प्रेजेंट इन प्लांट, एल्गी एंड बैक्टीरिया ओनली बिकॉज MEP पाथवे इज हेल्डिंग इन क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट, जब आप सिम्बायोटिक ऑरिजिन समझेंगे कि कैसे क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया सिम्बायोसिस के थ्रू एनिमल और प्लांट सेल में इंसर्ट किया। सो MEP पाथवे इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन है। MEP पाथवे का जो ऑरिजिन है प्रोकैरियोटिक है। सो MEP पाथवे अकर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट, एंड आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम दैट प्लांट synthesize C10, C20 and C40 component of terpenoid via MEP pathway, and drug targeted for MEP pathway have very less chance to acting on a human because these all are of prokaryotic organism. So we are multicellular organism, and we already evolved a lot, so that drug which is working on MEP pathway will very less effective on humans, because these are prokaryotic organism. But when it comes into the picture of mevalonate pathway present in plants, animal, algae, fungi and bacteria, and even in higher organism like कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि इवलिना है, जो कनेक्टिंग लिंक है एनिमल एंड प्लांट के, उनमें भी ये सारे पाथवे देखने को मिलते हैं। मेवोलेनेट पाथवे अकर इन साइटोसोल ऑफ प्लांट, ये कहाँ होता है, साइटोसोलिक एनवायरनमेंट में होता है, जबकि MEP पाथवे कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल थ्रू मेवलोनिक एसिड पाथवे, नॉट MEP पाथवे। तो कोलेस्ट्रॉल प्लांट में ही बनेगा, तो कहाँ से बनेगा, इसी पाथवे के थ्रू बनेगा। तो ड्रग टारगेटेड फॉर मेवलोनिक एसिड पाथवे have very chance to acting on a human body.
So by that note, I just want to tell you that MEP pathway drugs are attract to development of drug, you know, malarial drug जो है tuberculosis में, ये भी बहुत important है. मैंने आपको बोला था DXP जो है और MEP pathway के बीच में एक जो फॉस्मिडोसिन जो है एक एंटीबायोटिक है जो एंटीबायोटिक ओरिजिन का है. ये क्या करता है, इनको ब्लॉक कर देता है. तो इसके फंक्शन को ब्लॉक होने के बाद ये क्या होता है, कन्वर्जन ब्लॉक हो जाता है और ये MEP पाथवे ब्लॉक हो जाती है. तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा. दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट दैट पाथवे. सो बाय दैट नोट आई वांट टू थैंक यू फॉर योर पेशेंस. बाय, टेक केयर. So see you soon to the next video. Bye, take care.